Hello students, welcome to Kenny's Educare, a group of Kenny Solutions. Now from the last two lectures we are studying about the substances which are present in our surrounding, right? And till the last lecture we have completed with the states of the substances in the surrounding, right? And we came to know that there are uh, three states, right, of any substances. The states are solid state, liquid state and gaseous state, and we saw that this is very important how the change of the state takes place of any substance. Now solid on heating it will get converted into liquid, and when you will heat the liquid, that liquid will get converted into gas form, right? And then we saw when you will cool the gas will get converted into liquid, and the liquid on cooling it will get converted into solid. So this is the important part I told you, and you should know this. Then we studied about thermometer, which is used to measure the temperature, right? And the unit for measuring temperature is degree Celsius. Okay, then we studied about the process called boiling, and we saw that the boiling point and the condensation point of any substance is always one and the same, and the boiling point of water is 100 degrees Celsius. You need to remember this much here. Okay, then we started with the freezing point, and ये चीज़ तो हम देखते हैं when you keep a water in the refrigerator, तो आप उसको 10 minutes बाद देखोगे पहले पानी ठंडा होगा, एंड जब आप उसको हाफ एन आवर बाद देखोगे तो दैट वाटर माइट हैव got converted into ice form, है ना? इसको ही हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग. एंड वी सॉ दैट द फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंसेस वन एंड द सेम, एंड फ्रीजिंग पॉइंट आइस का क्या है, इट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस. Okay, so these two statements they are important, and this one, sorry. Okay, so these two substances, these three statements, they are also important because they can be asked in the objectives. Okay, then see, we saw the freezing and boiling points of some of the substances, and we saw कि when any substance, if solid will gain heat, it will melt and it will get converted into liquid, and then it will get converted into gas. And when it will lose heat, means when you will provide it with cold condition, आपने उसको हीट नहीं दिया है, उसको ठंडी लग रही है, ठीक है. फ्रीज करना मतलब क्या, उसका टेम्परेचर लोअर करना. दैट टाइम कंडेंसेशन प्रोसेस होगा, एंड दैट कंडेंसेशन विल गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रीजिंग, राइट? दिस इज व्हाट वी सॉ इन द लास्ट लेक्चर. देन वी सॉ सम ऑफ द यूजेस बिकॉज ऑफ द चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस. वी सॉ कि हम कैंडल्स बना सकते हैं, देन ड्राई आइस यूज़ कर सकते हैं आइसक्रीम्स को स्टोर करने के लिए, टू कीप इट फ्रोजन. देन लिक्विड नाइट्रोजन हम यूज़ कर सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री में. सिलिका वी कैन मेल्ट इट एंड इट कैन बी मेड इनटू अ ग्लास. देन वी कैन मेल्ट गोल्ड एंड सिल्वर मेटल्स, एंड देन वी कैन कन्वर्ट इट इनटू ऑर्नामेंट्स, है ना? एंड देन वी सॉ दैट आयन इट कैन बी मेल्टेड एंड इट कैन बी यूज टू मेक वेरियस अदर टूल्स. सो दिस आर द यूजेस बिकॉज of the change of the substances which we are using it, right? Then we saw the sublimation process, जहाँ पे हमने क्या देखा, पहला नॉर्मल जो फिनोमेन चलता है वो है सॉलिड से लिक्विड होगा, लिक्विड से गैस होगा. बट सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है, सॉलिड से इट विल नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, बट इट विल डायरेक्टली गेट कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म. सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज सब्लिमेशन प्रोसेस, राइट? आई होप यू आर क्लियर विद द प्रोसेसेस विच वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर. एंड हमने देखा कि अगर आपको कोई भी चीज़ का, कोई भी सब्सटेंस को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, तो देर इज़ अ नीड दैट यू शुड नो द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दो सब्सटेंस, तभी आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे, राइट? एंड दैट इज़ द रीज़न इन दिस लेसन यू आर गोइंग टू सी द you have seen the states, now you will be studying about the properties also, because जितना इम्पोर्टेंट आपको स्टेट्स के बारे में पता होना है, उतना ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना भी है, ठीक है? सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विथ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट इन योर सराउंडिंग. ओके, नाउ सी, you have to try this. What will happen if pressure is applied on a substance like chalk, brick, alum, glass or a rajgira vadi? Okay, what will happen? अगर आपने चौक पे थोड़ा सा भी प्रेशर लगाया, द चौक विल ब्रेक डाउन, राइट? वाई इट विल ब्रेक डाउन?
See, these substances, it will break into smaller pieces of particles because those are brittle substances. चौक एकदम से ब्रिटल होता है ना, अगर आप उस पर बैठ गए या आपका पैर लग गया देन तभी भी चौक ब्रेक कर जाएगा बिकॉज इट इज़ ब्रिटल. उसका नेचर कैसा है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी कैसा है, ब्रिटल है. सो सच सब्सटेंसेस दे आर सेड टू बी ब्रिटल एंड ये जो प्रॉपर्टी उनके पास है दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज ब्रिटलनेस. Okay, now same thing, you have did this with chalk. Now take the iron nail, ये जो खिला होता है ना, you have to take that and try the same thing with the iron nail also. You will see that iron nail will not break because it doesn't have the property of brittleness. It has the property of hardness. Because it is hard, you cannot break that. ओके या तो फिर कोई भी सब्सटेंस अगर है तो उसके पास या तो ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी होगी या तो हार्डनेस की होगी. हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी एक साथ कोई भी सब्सटेंस में नहीं हो सकती. ओके, नाउ सी, ट्राई टू पियर्स अ कार्डबोर्ड शीट, वेट मड एंड अ पीस ऑफ वुड यूजिंग द नेल. ओके, व्हाट हैपन्स, मड के अंदर तो आप नेल्स को ईजिली ठोक सकते हो ना, आप उसमें हैमर के थ्रू ईजिली आप नेल डाल सकते हो वेट मड के अंदर. पर जब आप वुड में करोगे तो इट विल नॉट बी ईजी, है ना. सो इट कैन पियर्स द कार्डबोर्ड शीट विथ सम एफर्ट, आपको कुछ एफर्ट डालना पड़ेगा. बट मड में अगर आप जब नेल को डालोगे विल इट टेक एफर्ट? नो. बट व्हेन यू विल डू द सेम थिंग विद द कार्डबोर्ड शीट एंड द पीस ऑफ वुड यू विल हैव टू अप्लाई एफर्ट्स. So why does this happen? Because the wood and the cardboard, they are hard because they have the property of hardness. Okay, so the hardness of the substance, it is determined. आपको कैसे पता चलेगा कि कितना हार्ड कोई भी सब्सटेंस है? जितना ज़्यादा आप एफर्ट डालोगे उतना ही ज़्यादा उसका हार्डनेस होगा, राइट. सो यू कैन डिटरमाइन बाय हाउ मच रेजिस्टेंट इट ऑफर्स टू द सब्सटेंस बिन पुश्ड थ्रू इट. ठीक है, वो कितना रेजिस्टेंट दे रहा है कोई भी सब्सटेंस को अपने थ्रू, अपने से पास होने के लिए. दैट इज़ द हार्डनेस ऑफ एनी सब्सटेंस. ठीक है, सो चॉक हैव द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिटलनेस एंड द आयरन नेल इट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनेस. ओके, नाउ सी, which is the hardest known substance? What do you think, which is the hardest known substance? See, you can check this. Diamond जो है it is the hardest known substance ever. Okay, now you have to do one more activity. You have to stretch a rubber band and let it go or apply a pressure on the piece of sponge and release it. See, this is the rubber band, you have to stretch it, or your sponge you know ना जो एकदम से दब जाता है, it is like a cotton. ओके, सो यू कैन टेक दैट ऑल्सो. एंड वॉट यू विल सी कि अगर आपने रबर बैंड को खींचा है, व्हेन यू स्ट्रेच द रबर बैंड अगेन इट विल कम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, राइट. एंड स्पॉन्ज के साथ भी सेम चीज़ होगी. सो दैट इज़ द अनदर प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस. ठीक है, सी, द रबर बैंड एंड द स्पॉन्ज दे विल गो बैक टू दर ओरिजिनल शेप, राइट. सी, आपने उसको खींचा था एंड देन इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप. Now some substances they change their shape when a force is applied. जब तक आप वो रबर बैंड पे फोर्स अप्लाई करोगे तब तक आप उसका स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हो. पर जैसे ही आपने अपना फोर्स या अपना प्रेशर उससे निकाल दिया दैट विल अगेन कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप. ओके, सो दिस इज़ द अनदर प्रॉपर्टी. सो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी बिकॉज इट इज़ इलास्टिक इन नेचर. ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे इलास्टिसिटी. सो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस. फर्स्ट प्रॉपर्टी विच वी सॉ वॉज ब्रिटलनेस, सेकेंड प्रॉपर्टी विच वी सॉ वॉज हार्डनेस, थर्ड प्रॉपर्टी इज इलास्टिसिटी. ओके, नाउ सी, टेक अ फ्लैट मेटल शीट ऑफ द साइज ऑफ अ नोटबुक. अपने नोटबुक जितने साइज का एक मेटल शीट लेना. यू विल होल्ड इट एट एन एंगल. This is how you will hold it and you have to put a drop of water. ठीक है, first you will put here the drop of water, then drop of honey and a drop of gum at different places. This is how you will place it. Now you have to observe who will flow down faster and you will see that the water will come down faster, honey slowly and the gum will not flow down. Now why is it so, you will come to know. See, liquids they flow downward on a sloping surface because you have kept a sloping surface like this. liquids जो है वो जल्दी से flow कर जाएंगे.
ओके इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज फ्लूइडिटी. सो फ्लूइडिटी आपको कैसे पता चलेगा कोई भी लिक्विड का, हाउ ईजिली इट फ्लोज, कितना ईजिली वो फ्लो कर रहा है, इट मीन्स इट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी. अब अगर आप गम की बात करोगे तो गम इज़ नॉट फ्लोइंग, राइट, सो इट डजेंट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी एंड दैट इज़ द रीज़न इट इज़ नॉट फ्लोइंग. But when you talk about water and if you take milk also here, milk mixed with water, that will flow quickly. Why? Because it has the property of fluidity. Okay, so I hope you are clear with this fourth property. Now see, if two blocks of same size, one wooden and the other of iron, they are weighed in a balance, how will they compare? मतलब आपने ये देखा है ना, जब आप किराना स्टोर पे जाते हो वहाँ पे वेइंग बैलेंस होता है. Wait, I'll draw it and show you. This is how it is. इसके ऊपर एक छोटा सा स्केल जैसा होता है and this is how it looks like. Okay, इसके ऊपर सामान रखते हैं and they weight, ऐसा करके कुछ तो होता है उस पर, ठीक है. So this is the weighing balance. अब आपको करना क्या है, एक पे वुडन का ब्लॉक रखना है. ब्लॉक क्या होता है, मतलब ऐसे आपने ब्रिक देखा है ना, ऐसा एक ब्लॉक रखना है जो वुड से बना होगा एंड दूसरा आपको रखना है ऐसा चीज़ जो आयरन से बना है. नाउ व्हाट यू विल ऑब्जर्व एंड हाउ यू विल कंपेयर देम. सी, अब बिकॉज दोनों का मास अलग अलग होगा, जो वुड है उसका वेट ज़्यादा नहीं होता इसलिए उसका मास जो है वो कम होगा, वाइल आयरन जो है उसका वेट ज़्यादा होता है, राइट. सी, द मास ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस हैविंग द सेम वॉल्यूम कैन बी डिफरेंट. इसका मतलब क्या है, आपने दोनों का साइज़ तो सेम लिया है पर दोनों का वेट जो है वो अलग होगा, राइट. सी, दिस डिफरेंस इज़ बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज़. डेंसिटी मतलब क्या, उनका वेट एक तरह से. ओके, सी, बिटवीन सब्सटेंसेज ऑफ सेम वॉल्यूम the ones with greater density are heavier than those with lesser density. So जिसकी density heavier होगी उनका weight ज़्यादा होगा, जिनकी density कम होगी उनका weight कम होगा, right. So this is what you can conclude by weighing this. ठीक है. Now another experiment which you have to do is you have to take water and you have to take kerosene. Okay, so take a glass of water, add some salt, फाइन सैंड एंड शुगर टू इट एंड ट्राई टू डिज़ोल्व देम. ओके, तो आपको एक पहले ग्लास ऑफ वाटर लेना है, इसमें 3 चीज़ें डालनी है, सॉल्ट, सैंड एंड शुगर, एंड यू हैव टू ट्राई टू डिज़ोल्व दैट. नाउ यू हैव टू रिपीट दिस रिप्लेसिंग वाटर विथ केरोसिन. नाउ व्हाट डज दिस मीन, आपने वाटर के अंदर ये तीनों चीज़ें डाली, अब आपको केरोसिन लेना है वाटर की जगह एंड यू हैव टू ऐड सॉल्ट, फाइन सैंड एंड शुगर टू इट एंड आपको फिर से उसको डिज़ोल्व करके दिखाना है. सो आपको क्या दिखेगा, यू नो, कुछ सॉलिड सब्सटेंस दे विल डिज़ोल्व इन अ पर्टिकुलर लिक्विड ओनली. मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो केरोसिन में डिज़ोल्व नहीं होंगे बट दे विल डिज़ोल्व इन वाटर. कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होंगे दे विल नॉट डिज़ोल्व इन वाटर बट दे विल डिज़ोल्व इन केरोसिन. ओके, सो अगर कोई सॉलिड डिज़ोल्व नहीं हो रहा है लिक्विड में तो उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज इनसल्यूबल, बिकॉज वो सल्यूबल नहीं है उसके साथ, इट इज़ नॉट मिक्सिंग विद द लिक्विड एंड दैट इज़ द रीज़न इट इज़ कॉल्ड एज इनसल्यूबल लिक्विड. एग्जाम्पल, सॉल्ट इज़ सल्यूबल इन वाटर बट इट इज़ इनसल्यूबल इन केरोसिन. नाउ व्हाट डज दिस सेंटेंस मीन, अगर आपने पानी के अंदर सॉल्ट डाला ना तो सॉल्ट विल मिक्स विद द वाटर एंड यू कांट फाइंड आउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट इन इट. बट व्हेन यू विल डू द सेम थिंग विद केरोसिन, अभी आपने केरोसिन लिया एक ग्लास में एंड यू आर एडिंग सॉल्ट टू इट, तो वहाँ पे सॉल्ट केरोसिन के साथ मिक्स नहीं होगा बिकॉज इट इज़ नॉट सल्यूबल देयर, इट इज़ इनसल्यूबल इन केरोसिन. सो हियर हाउ विल से salt in water, it is soluble in water because it is mixing with the water, and kerosene in salt is insoluble in water because it is not mixing with the water. Okay, so you know of many beverages made by using water and soluble substances. So the property of substance of getting dissolve, मतलब कोई भी ऐसा substance जो dissolve हो जा रहा है, इस property को हम बोलते हैं solubility of any substances. ठीक है, अगर वो dissolve नहीं होगा so that property is called as insolubility of that substance. ठीक है. Now see, next property, again one experiment and again one observation which you need to do. When we can look through a substance and see things on the other side. ठीक है, अभी सपोज़ आपके सामने मिरर रखा हुआ है एंड आपके सामने एक विंडो है, तो आप उसके विंडो से आप बाहर की चीज़ें देख सकते हो ना. वाई?
because the window, the mirror, it is having the property of transparency. See, when we look through a substance and see things on the other side, then the substance is said to be transparent, because वो transparent है इसलिए तो आप उसको देख सकते हो ना. Now we love using bottles that are transparent ना, because आपको अंदर का पानी दिखता है. अभी आप जो ग्लास देखते हो, ओके, ग्लास हो गया, ग्लास बोल हो गया. अब अगर आपने उसमें कोई भी चीज़ डाली तो आपको वो बाहर से दिखेगा ना अंदर क्या है. तो that property is called as transparency, because you can see the inside of it, right? So glass, then some type of plastics also, clean water and air, these are all transparent substances which are present in your surrounding. Okay, so the next property is transparency. Now see, can you tell me which objects are this, or which substances this are? See, this is the gold substance, right? And this is the another substance. Either it can be iron, it can be copper, or any other substance, but these are the metals, right? Gold and silver, they are metals na. So from which substances they are made? They are made up of metal. This is a gold, तो बहुत सारे gold particles से बना होता है ये. Now what are the substances called as a group? As a group they are called as metals. Now one is metal and one is non-metal. Okay, तो metals क्या होता है? Substances like copper, gold, iron, aluminium, this all substances they are called as metals. Okay, and this metals ये कहाँ मिलता है हमें? एकदम inside of the earth. अगर आपने mining सुना है, ये गोल्ड सिल्वर इन सारी चीज़ों की माइनिंग होती है, इनको अंडरग्राउंड. आपने देखा होगा, कुछ वीडियोस देखे होंगे आपने, जहाँ पे उनको लैंड से, मतलब हमारा जो लैंड है, उनको जब वो डिग करेंगे तो अंदर से सोना निकलता है, राइट? सो ये हमें कहाँ से मिलता है? डीप इनसाइड द अर्थ. एंड मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, दे आर प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन द मेटल. Okay, so in daily life we have various uses of this precious metals, right? Gold and silver, they are precious metal to us. So let us study some common properties of metal. अब metal की कुछ properties होती है. Now as you have studied the properties of transparency, then elasticity and various other properties you have studied, now you will be studying the properties of metals. Okay, now see, you have to try this with an experiment. टेक अ पीस ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम वायर और अ स्मॉल नेल. ठीक है, ये आपको खिला लेना है छोटा सा. यू विल हैमर इट रिपीटेडली. आपको ऐसे हैमरिंग करनी है उस पर. नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप देखोगे कि बहुत बार हैमरिंग करने के बाद जो वायर आपने ली थी वो फ्लैट हो जाएगी. ठीक है, वायर फ्लैट हो जाएगी, मतलब वो एक थिन शीट फॉर्म कर लेगी. एंड हेंस यू कैन से दैट मेटल्स इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स बाय हैमरिंग प्रोसेस. ठीक है, चपटी हो जाएगी मेटल जब आप उस पर बहुत बार हैमरिंग करोगे तो. सो ये प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड एज मिलेबिलिटी. ठीक है, इट मीन्स दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स, एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल इट इज़ कॉल्ड एज मिलेबिलिटी. ओके, नाउ सी नेक्स्ट वन, हॉट आयन. नाउ यू आर टेकिंग योर आयन बट इट इज़ हॉट. ठीक है, it is hammered and made into thin sheet. These are the thin sheets like iron which you can see. So you can visit a blacksmith shop to observe how this hammering causes its stretch. ठीक है, आप कोई भी blacksmith के shop पे visit कर सकते हो and you can ask him कि how it is done exactly. Then you might have seen iron bars which are made to revolve continuously while being hammered become longer. ठीक है, आयरन बार्स जो होते हैं उनको भी हम 3 शीट्स में करके उनको जब आप हैमरिंग करोगे दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ लॉन्ग शीट टाइप ओनली. सो दैट आयरन कैन बी ड्रॉन इनटू अ वायर. इफ़ यू कैन सी दिस इज़ द वायर. आयरन ही प्रेजेंट होता है ना. अगर आप देखोगे, अगर कोई आपको घर में वायर मिलेगा, यू विल सी दिस गोल्ड. सो दैट इज़ द आयरन पार्ट. तो आयरन से आप वायर भी बना सकते हो. सो दैट मेटल्स कैन बी स्ट्रेच्ड एंड ड्रॉन इनटू वायर्स. तो अगर कोई ऐसा मेटल है जिनको आप स्ट्रेच करने के बाद उनसे वायर बना सकते हो, दैट प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल, उसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी. ओके, सो आपने देखा होगा कि गोल्ड का वायर होता है, सिल्वर का वायर होता है, कॉपर, प्लैटिनियम, इन सब के वायर्स मार्केट में अवेलेबल हैं. सो
Why these wires are available? Because the metal is having the property of ductility. पहला प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा मेटल का? वी सॉ इज मेलेबिलिटी. मतलब जो अगर आप मेटल्स को थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो तो इसका मतलब मेटल्स के पास एक प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं मेलेबिलिटी. अगर आप मेटल्स को कन्वर्ट कर सकते हो वायर्स में तो इसका मतलब मेटल्स के पास प्रॉपर्टी है विच इज़ कॉल्ड एज डक्टिलिटी. ओके, देन another example. Now can you tell me why are the electric boards they are fitted on the walls which are made up of plastic or wood? आपने कभी ऑब्जर्व किया है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द गुड एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. Now see, the handle of the cooker is made up of plastic. Why? Because plastic is a good conductor of heat. See, इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो करती है बिकॉज यू आर कन्वर्टिंग इट इनटू अ थिन वायर. इट मीन्स अब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी ना, तो इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो थ्रू मेटल्स. ओके, सो ऑल द मेटल्स दे आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू अ ग्रेटर और लेसर एक्सटेंट. ठीक है, आप उसको you can use it to provide to conduct electricity. okay, and ये property हम क्या बोलते हैं किसी भी metal की? it is called as electrical conductivity because it can provide you electricity through this metal, right? And hence it is called as the property of electrical conductivity because it will provide you electricity, right? then even when a piece of metal जब आप उसको hit करोगे एक जगह से the whole of it becomes hot, right? ये क्यों है? Now I'll explain you. wait, see, suppose ये वायर है और आपने यहाँ पे बर्नर लिया है एंड यू आर हीटिंग दिस पार्ट ऑफ द वायर. ठीक है, आप ये वाला पार्ट वायर का हीट कर रहे हो. यू विल सी थोड़े टाइम के बाद व्हेन द होल ऑफ द वायर, यहाँ तक पूरा वायर, इट विल बिकम हॉट. इसका मतलब क्या है? हीट ट्रांसफ़र कर रहा है फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन. इट मीन्स हीट फ्लोज, राइट? So even when a piece of metal is heated at one place, the whole of it becomes hot. इसका मतलब क्या है? The heat metals allow heat to flow through them. And ये वाली metal की property to allow the heat to flow through them, that property is called as thermal conductivity. Now what do you mean by thermal? Thermal मतलब temperature. And because when it was providing you electricity, you called it electrical conductivity because it is allowing you to pass electricity. Here it is providing you to pass temperature and that is why it is called as thermal conductivity. okay, अब metals के पास typical shine and luster होता है ना. अभी आप देखोगे gold and silver वो कितना ज़्यादा shine करते हैं. It means they have this property also. They have that shine and luster which attracts people, है ना. सो एवरी मेटल दे विल हैव देयर कैरेक्टरिस्टिक कलर जिससे आप उसको आइडेंटिफाई करते हो. अगर आप अभी गोल्ड की बात करोगे तो हाउ यू विल आइडेंटिफाई गोल्ड? बिकॉज इट लुक्स गोल्डन इन कलर. सिल्वर, इट इज़ सिल्वर इन कलर. आयन, इफ़ यू से आयन इज़ ब्राउन और रेड इन कलर, है ना. सो दिस इज़ हाउ वी आइडेंटिफाई ऑल द मेटल्स बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज विच दे हैव. Now this is a sitar. You have to plug the sitar string of a musical instrument like a tanpura or vena, ring a bell or heat a steel box with a metal spoon. What can you hear when you do such things? You will hear certain sound, right? So, or you can do strike a wooden table or a marble floor with a wooden stick. Here also you will see, you will hear some kind of sound. Now you have to note the difference in the sound which is produced in the two cases. ठीक है, तो आप देखोगे साउंड जो है वो अलग अलग आएगा. तो योर यू कैन से जो मेटल्स है, ओके, मेटल्स जो है दे प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड. तो जो मेटल आपको रिंगिंग साउंड देगा एंड बाय इट गिव्स बिकॉज इट हैज़ द प्रॉपर्टी विच इज़ कॉल्ड एज सोनोरिटी ऑफ द मेटल. ठीक है, so here you can see how the metals are used for different purposes and how different objects and different substances are made out of different metals, right? तो अगर metal से आपको sound सुनाई दे रहा है that means metal it is having the property of sonority. okay, now always remember that during rainy season or any other time you do not touch the exposed electrical wire or metal parts. जो ऐसे ही खुले पड़े होता है ना वायर्स, उनको कभी टच नहीं करना है. ओके, देन आपको इलेक्ट्रिकल लैम्प्स एंड सारे अप्लाइंसेस स्विच ऑफ करने हैं जब आप यूज़ नहीं कर रहे होते हो. एंड फॉर एग्जांपल अगर आप टीवी देख रहे हो, व्हेन द टीवी इज स्विच्ड ऑफ बाय द रिमोट कंट्रोल, डू नॉट फॉरगेट टू
पुट ऑफ द मेन स्विच. अभी हम क्या करते हैं, टीवी को रिमोट से बंद कर देते हैं, मेन स्विच चालू ही रहता है, राइट? सो दैट शुडंट बी डन. You should save electricity also, okay, because it will help us to save electricity and it will protect us from any possible danger. तो यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी तो बच रही है, बट इट विल ऑल्सो प्रोटेक्ट यू फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ डेंजर्स विच कैन अकर इफ़ यू कीप द स्विच ऑन. ठीक है, इसलिए आपको हमेशा स्विच बंद करना चाहिए. एंड आस्क योर सीनियर्स एट होम टू चेक द इलेक्ट्रिक वायरिंग्स एंड फिटिंग्स इन द हाउस पीरियोडिकली. अब जो हमारे घर के अंदर इलेक्ट्रिक बोर्ड आप देखते हो होगा, स्विच बोर्ड होगा एक, सो दैट शुड बी चेक पीरियोडिकली. ठीक है, वरना शॉर्ट सर्किट हो सकता है. शॉर्ट सर्किट होगा तो इट क्रिएट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम. ओके, सो इट शुड बी चेक्ड पीरियोडिकली. हम लोग को 3 months में एक बार पूरा चेक करवाना चाहिए घर के वायर्स को. ओके, so what we have learned in the lesson, we saw that the 3 states of substances which are solid, liquid and gases, right? Then we saw that the temperature of a substance, that is how cold or how hot it is, it can be measured with the help of an instrument which is called as thermometer, right? And we saw that कि कोई भी सब्सटेंस का अगर आपको स्टेट चेंज करना है, यू कैन आइदर हीट इट, यू हैव टू आइदर प्रोवाइड द हिट और यू हैव टू मेक द हिट लॉस, राइट? देन उसकी जो स्टेट है इट विल चेंज. देन सब्सटेंसेस दे हैव वेरियस प्रॉपर्टीज़. हमने देखा हार्डनेस, इलास्टिसिटी, ब्रिटलनेस, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, राइट? वी हैव स्टडीड ऑल दिस प्रॉपर्टीज़ विद एन एग्जाम्पल, है ना? So I hope you are clear with all the properties. Then we saw that metals, they form a separate group of substances, and some metals, they will have some properties like malleability, ductility, thermal conductivity, electrical conductivity, sonority, luster and characteristic color, right? So this is the summary of what we have studied in the 3 parts. So I hope you are clear with each and every part covered in this lesson. So we are done with the lesson. But before that, you should know there are some science watches and you should go and watch that, because it will give you some basic journal knowledge regarding science. Okay, so science is developing continuously. There are various new concepts which are coming into science. Okay, and to be an updated person, you should know everything that is happening in your surrounding. Okay, so how much do we know of it? We don't know anything, right? आप देखोगे तो स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे अलग अलग रिसर्च चल रहा है साइंस पे, एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ इट. okay, so if we wish to keep ourselves informed about it, we must be aware of the various things which are happening around us, because it will increase your knowledge. And so what you can do, you can make newspapers your friends, then you can read your newspapers daily. You should collect various articles which are given in science, then you can discuss and share them with others. What you can do, you can at least read one article in a week and tell one of your friend to read another article, and then you can discuss it. So this is how you will increase your knowledge, right? So we are done with the lesson. Thank you everyone.